behind, but I'll catch up. I haven't finished all the portions. अच्छा चलो कोई नहीं, चलो क्वेश्चन देखते हैं। सो मैथ्स में अभी पूरा सिलेबस कवर करना है आपने या फिर लाइक कुछ नहीं, स्पेसिफिक पोर्शन? नहीं हुआ। हम्म। अम, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। What I'm saying is that हम्म। to finish the portion by myself. Your voice is lagging a little bit, Faris. Can you please repeat that once? Uh, I have to finish the portions by myself, which I have not done yet. Okay, 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 okay. ओके चलो Uh, फारिस, मैं आपका वाइवा स्टार्ट करूं। आज वाइवा लेते हैं आपका, थोड़ा सा पहले न्यूमेरिकल से पहले थोड़ा सा वाइवा के क्वेश्चंस कर लें कंसेप्चुअल, कि हम लोग लाइक रीजंस बेसिकली बिहाइंड दैट थिंग्स। क्या? Let's take some Viva, basically some oral test of yours based on electricity chapter questions. Okay, Are sure. you comfortable? Yeah. Okay. So you can answer in any of the language. Like it's not mandatory you have to speak it in English or speak it in Hindi. It's up to you. You can use both the language or it's up to you totally. So, but just be comfortable. Okay. Okay. Yeah. Just give me a second. So yeah, I'm saying that thing. Why series parallel? Why basically the series arrangement is not used for connecting domestical electrical appliances. Why CDs is not used? Why series is not used in the basically basically domestical circuits. We have this our household circuit is called domestical circuits now. Oh, yeah. So why don't we use that series combination in the household circuits? Is there any specific reason? Yeah, because in CDs, yeah, if one appliance gets affected, then the others will stop working. But in parallel, even if one has a problem, others will still work. ओके ओके। चलो देखो, आप जो है ना क्या करना, थोड़ा सा आप जब मैं एक आपको टिप बताता हूँ। देखो एक क्लास को समझो अभी थोड़ा सा, कि एक टाइप से ये आपके बोर्ड्स में किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इट्स नॉट साइंस, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश को छोड़ के और हिंदी को छोड़ के कोई सा भी सब्जेक्ट हो, यू हैव टू राइट द आंसर इन सच अ मैनर। ओके। जब भी कोई रीजन पूछे, मान लो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे उसको पहला पॉइंट लिखो। फर्स्ट रीजन बिहाइंड इज like why don't we use series circuits in basically instead of parallel circuits. We basically don't use series circuit because like the series circuit only have one switch. That's why every appliance cannot be handled or operated individually. ठीक है, आपका ये फर्स्ट लाइन हो गया। सेकंड रीजन आप So बताओ, क्या कह रहे थे आप? I can also answer like that. Yeah, so you can answer, but it's you can say like it's like basically जब भी आप आंसर लिखो ना, आंसर शुड बी इन कंसाइज पॉइंट्स। लाइक आप इफ यू राइट पैरा, टीचर like the like checker will like will not get the points what points you have written. But if the para is long, like half page long, okay, but if you have Mm. written 3 or 4 lines with concise and proper information, that para will not give you the proper marks, but these 3 lines or 4 lines will give you the proper, or you can say complete marks. Okay. Yeah, I understand. Yeah. So that's why it's always preferred to write the answer in the points, because this also basically you can say saves your time, because you don't have to write such a long story. But rather than you suppose that 3 marker question, you have written 4 points, very concise points. So teacher will give you each marks, like if even if you've written 3 points, teacher will give you the complete marks on that. Okay. He cannot he or she cannot deduct the marks on the basis of that. You have to Okay. just explain a little bit, like if you are writing a point, it should be 2 line, another point should be 2 line, so almost 6 lines will be there. But you it's better than writing a para, yes or no, obviously. Yeah, yeah. Yeah.
So that's what is. Okay, so you have told me that first reason because if any of the so basically you have told me the first reason is that if any of the appliance stops working, the other will also stops working. Right. Second reason I have told you that only one switch is there at this to control the series combination, and it cannot be handled individually. Yes. Yeah. And in parallel combination, No, no. uh, You have to tell me the reason why don't we use series combination? Like we don't have to say that in parallel combination. Just be in the series. the It should. series combination, the circuits in the series combination Mhm. do not get the full voltage. Okay. Yes, that's also a reason because uh, voltage differs, but the current is same. But every appliance required a specific amount of voltage to operate. Yes. Yeah. So third point will be this. Any other point apart from this? One more point is left, which I've told you in the class. Mm, no, I don't think. Wait, There's one point left, Faris. there's one point left. हम्म मतलब 3 पॉइंट्स काफी हैं बट एटलीस्ट आपको चारों पता होना चाहिए ताकि आपको एटलीस्ट जब आप आंसर लिखो तो आपको अच्छा है Obviously. क्योंकि बोर्ड्स में अगर एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा लिख दोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट है कि वो टीचर आपको ये सोच के नहीं मार्क्स काटेगा कि इसने 3 ही पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपने 4 पॉइंट्स लिखे तो टीचर को फुल मार्क्स देने ही पड़ेंगे। ठीक है। Okay. फोर्थ पॉइंट है फारिस इसमें कि ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, नॉर्मली ऐड कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R अप टू RN। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा? हम्म, यस और नो? बढ़ा। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट की सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा ना जब रेजिस्टेंस इतना हाई होगा तो। जी। ठीक है। तो दैट्स व्हाई दीज आर द फोर यू कैन से कंडीशंस दैट और यू कैन से ड्रॉबैक्स ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन टू यूज इन द हाउस होल्ड सर्किट्स। क्लियर है? हम्म। हम्म। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दो फारिस, आप सॉल्व करो उसे। ठीक है। सत्यो। ये आप सॉल्व करो प्रॉपरली इसको। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ये PYQs हैं फारिस, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आज ये बोर्ड्स में आ चुके हैं। देखो ये 2008 में आया था। तो बोर्ड्स में सारी चीजें वही रिपीटेशन होती हैं जो आ चुकी होती हैं। बहुत मतलब लाइक 70% पेपर ऐसा आता है जो आपका NCERT और PYQs का मिक्सचर होता है। यानी कि आपके अगर 80 मार्क्स का पेपर 70 कितना 80 मार्क्स का पेपर होगा ना आपका, 80 मार्क्स के पेपर में से 70% कितना हुआ? 56 मार्क्स आपके आपके हैंड में है जो कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको NCERT और PYQ से मिल जाएंगे। ठीक है। हम्म। प्लस जो 30% मान लो, ये 25% पेपर होता है, 80 मार्क्स है ना, तो मान लो आपके 60 मार्क्स, मान के चलो 75% आपका 60 मार्क्स हो रहे हैं। 20 मार्क्स जो होते हैं आपके वो आपके लाइक थोड़े से आपके अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं और आपके थोड़ा सा आप जैसे रेफरेंस बुक्स मैंने आपके साथ शेयर की है ना, एस चांद की बुक आई हैव शेयर्ड विद यू, यस और नो फारिस? यस यस। हम्म। उसमें आप देखोगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं होते, कभी कभार वो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है। सो ओके। एक बार जैसे देखो जो चीज एनसीईआरटी में नहीं है तो वो आप उस बुक से रेफर कर सकते हो। जैसे कि एक दो क्वेश्चंस अच्छे से उसके मतलब जैसे कि लाइक गुड क्वेश्चंस यू कैन से लाइक टू टू थ्री क्वेश्चंस उसमें ऐसे होते हैं। ठीक है। वो आपके उसमें नहीं होते एनसीईआरटी में। तो कंसेप्चुअल की बात कर रहा हूँ मैं, कंसेप्चुअल की। न्यूमेरिकल तो उसमें अच्छे ही होते हैं सारे क्योंकि एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स आर वेरी लेस, वेरी लिमिटेड। सो इसमें दो तीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आप अगर आप सिर्फ नजर भी मार लोगे, इफ यू बेसिकली जस्ट थ्रू दैट टॉपिक्स और पॉइंट्स, सो बेसिकली दैट विल बी इनफ। सो ठीक ऐसे है। ही 80% का पेपर रेडी होता है, मतलब 100% पेपर रेडी होता है। 75% आपके प्रॉपरली बोर्ड्स PYQ और NCERT होता है, उससे बाहर नहीं होता। ठीक। हो सकता है आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लें, जिसने अच्छे से डीप में पढ़ा होगा वही उनको आंसर कर पाए। जैसे जैसे कि ओम्स लॉ का है, ओम्स लॉ के फैक्टर्स पूछ ले। ओम्स लॉ के फैक्टर्स पूछने के लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
अगर ओम्स लॉ का आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। अब रेजिस्टेंस भाई किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है एंड क्यों डिपेंड करता है, यस और नो फारिस? Yeah. रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस? सो रेजिस्टेंस इज, you can say, a property of a substance to basically oppose the flow of current, and resistivity is the, you can say, property of a material to offer a specific amount of resistance for 1 meter of area, 1 meter for a unit area and a unit length, yes or no? यही तो होता है, Yes. Mm. ठीक है? सो ओके, सो ये क्वेश्चन करो आप, डू दिस क्वेश्चन फारिस, तो इस टाइप से आपको स्कोर हो जाएगा, ठीक है? सो डोंट लाइक आप PYQs को देखो आपके ऐप में, आपके मोबाइल के जो ऐप है लर्निंग भी होगा, उसमें सारे पी जो भी क्वेश्चंस टॉपिक्स वाइज हैं, इट्स अ कंप्लीट PYQ मॉड्यूल। जस्ट गो थ्रू देम वंस यू आर डन विद द चैप्टर, गो थ्रू देम अगेन, सॉल्व एंड अगेन 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 एंड अगेन। जो न्यू क्वेश्चन भी आएंगे ना, वो भी इसी के बेस्ड पे आएंगे, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा। अगर CBSE ने नया क्वेश्चन कोई फॉर्म भी किया तो बहुत सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है? चलो आप ये करो क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। Mm. अभी दोबारा कोई टेस्ट वगैरह होंगे आपके स्कूल में फारिस? ये केस एग्जाम है मेरा, दूसरे वाले प्रीपोर्ट्स। अच्छा दो, अच्छा एक तरीके से, अच्छा ठीक ठीक है, ओके ओके, कब है वो? और प्री बोर्ड है। जनवरी में? हाँ, जनवरी में। गॉट इट गॉट इट। CBSE का डेट शीट आ चुका है ना? हाँ डेट शीट आ गई है, स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी अबाउट दिस, आई हैवंट चेक्ड येट, बट हाँ डेट शीट आ गई है। हम्म। लाइक इन माय बैच स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी दैट आई थिंक मैथ्स का पेपर आपका 7th या 10th ऑफ मार्च को है। आप मैथ्स भी पढ़ाते हैं? हाँ यस, आई ऑल्सो टीच मैथ्स, आई ऑल्सो टीच मैथ्स फॉर 9th and 10th ईयर, ओ, या। डन। डन, चारों या पार्ट, थर्ड ऑल द 3 पार्ट्स। या इट वाज क्वाइट Chalo, इजी। that's good. It's quite easy. Yeah, I know. So, very good, dear. Very good. Okay, so basically, we have to calculate the current through all the resistance. So, if we need to calculate, yes, at this point, all the three, basically, this, so you can say resistors are connected in parallel combination. Yes or no? Because there is a या common joint here, and you can see that thing, all the joints are connected at a common point. Okay, so it means that are parallel combination. So, voltage will be same to all. So, V is या equals to 6 volt. So if you need to calculate the current through each resistance, so current will be different. So I1 will be equals to what? V by R1. या V is 6, R is टू। 2, which is 3 या ampere. ठीक है? I2 will be equals to V by R2. या V is 6, R2 is 5. So it is 1.2 ampere. ठीक है?
and I3 is equals to V by R3 0.6. is equals to 6 by 10, which is equals to 0.6 एम्पेयर. ओके, टोटल करंट कुछ नहीं होगा, टोटल करंट को ऐड कर दो. टोटल करंट कैसे निकलेगा? ऐड ऑल द करंट्स. Yes. भाई, I want to try to plus yeah, just I3. now if the current is entering from this point and after this point it's getting divided, and the same amount of current will be coming out from this, like when they merge, same Yeah. amount of current will be coming from this. Yeah. So Yeah. it would be I1 Plus plus I2 plus I2 plus of I3, which is equals to 3 4.7. plus 1.2 plus 0.6. So it's coming out to be 4.2 and 4.8 ampere. ठीक है, and you have to calculate the equivalent resistance. So R1 is equals to 6, not 6 2 ohm. R2 1 is by R. equals to Oh, हाँ, R equivalent हमें ऐसे भी निकालने की जरूरत नहीं है. देखो R equivalent हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा. How? R equivalent will be equals to total voltage by total current. So 6 by 4.8. ठीक है. only तो like I use the parallel formula, like 1 by हाँ, R is equal. वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमने स्मार्ट वर्क करा. स्मार्ट वर्क क्यों? हमें पता चल गया, देखो हमारे पास टोटल वोल्टेज है, वोल्टेज तो सेम रहेगा ऑल ओवर द सर्किट. करंट हमारे पास टोटल आ गया, तो करंट टोटल आ गया, तो अगर हम टोटल करंट और टोटल वोल्टेज का रेशियो लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? आर इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा ना, बिकॉज ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू तभी तो हमारे पास टोटल चीज जब आती है जब हमारे पास आर इक्विवेलेंट होता है. Hmm. ठीक है. सो ये आपने डेसिमल हटाया एंड 48. सो दिस इज 8 and 10, and this comes out to 1.25. be, yes Faris, I got 1.25. 1.25. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 1.25 ओम. दिस इज योर आंसर. क्लियर है? देखो इजी था क्वेश्चन. हाँ. यहाँ पे आपके पास देखो आपको दो अप्रोच सीखने को मिली यहाँ से. हाउ you can use either the normal combination of circuits, or once you have done calculated the total amount of current and the total amount of voltage, basically voltage will be same in the parallel combination, so R Yeah. equivalent will be identified by dividing both the quantities. चलो ठीक है. अच्छा देखो आप ये क्वेश्चन करिए. देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट क्वेश्चन इज वेरी गुड. सीबीएसई फॉरेन का क्वेश्चन है 2010 का. फॉरेन का क्वेश्चन मतलब? लाइक सीबीएसई के जो आपके आउट ऑफ इंडिया वाले स्कूल्स होते हैं उसमें जो आया हुआ होता है, तो वो सीबीएसई फॉरेन कहलाता है. ये क्वेश्चन देखो, अब तो आप दूसरे इसको, the question papers are different. हाँ पेपर थोड़े से डिफरेंट होते हैं. सेट्स होते हैं ना पेपर में भी, एबीसी 3 सेट होते हैं, 4 सेट होता है आई थिंक. हम 4 होते हैं, 4 ABCD 4 होते हैं, क्योंकि व्हेन आई गेव द एग्जाम्स इन 12th सो 4 सेट थे. तो आपके 4 सेट होते हैं. 4 सेट में पेपर में ऑलमोस्ट सेम होता. अब मुझे क्योंकि देखो आई हैव नॉट, मैंने कभी ये चीज ऑब्जर्व नहीं की कि चारों सेट में क्या क्वेश्चन सेम होते हैं या फिर नहीं. मुझे जहां तक लगता है एक दो क्वेश्चन डिफरेंस होता है, बट पूरे पेपर सेम होता है, बट हाँ शफल्ड होता है पेपर. अगर ए का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ मान लो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तो हो, और तो आपका क्वेश्चन नंबर जो सेट बी है उसमें 8 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होगा, हो सकता है मैग्नेटिक्स का हो सकता है आपका लाइट का हो. तो डिफरेंस होता है क्वेश्चन में. मैक्सिमम क्वेश्चन सेम होते हैं बट शफल्ड होते हैं आपके. ओके. एक दो क्वेश्चंस डिफरेंस होता है, बस ज्यादा नहीं. एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस होता है कि हो सकता है एक में लाइट में 5 नंबर का पूछ लिया, एक में इलेक्ट्रिसिटी में 5 नंबर का पूछ लिया, एक में मैग्नेटिक्स का 5 नंबर का पूछ लिया. वेटेज तो फिक्स नहीं है? हाँ, वेटेज तो फिक्स नहीं है? नहीं वेटेज फिक्स है. बेसिकली वो क्या करता है, वो पेपर में थोड़ा सा सिर्फ चेंज करता है. दो को कि मान लो सेट ए में एक क्वेश्चन अलग रखा है, सेट बी में एक क्वेश्चन अलग है, तो उससे ये होता है चीटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं डियर. अच्छा. हाँ यहाँ पे ये बात आती है. देखो जो आपके नॉर्मल नॉर्मल मिड टर्म और प्री बोर्ड्स होते हैं, मतलब इंडिया में, हम्म. लाइक बेसिकली इन गवर्नमेंट स्कूल्स क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल में जो पेपर आता है वो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आता है, बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट से ही. वो कोई स्कूल में क्रिएट नहीं होता, वो प्रॉपरली पेपर इज. हाँ फारिस. सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है? नहीं नहीं, जब हमारे प्री बोर्ड्स और मिड टर्म्स वगैरह होते हैं ना डियर, तो वो बोर्ड से ही आता है पेपर.
ठीक है, जो हमारे स्टेट बोर्ड्स होते हैं। बट नेशन जब बोर्ड आप का। सीबीएसई पेपर देने जाते हो वो सेंट्रल बोर्ड से आता है। सो अच्छा। इन ये गवर्नमेंट स्कूल की बात है। प्राइवेट स्कूल जो होते हैं, प्राइवेट स्कूल अपना पेपर खुद बनाते हैं। हाँ सो हाँ। हम जब, बिकॉज आई स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली। सो दिल्ली में जितने भी पेपर होते हैं आपके मिड टर्म या फिर आपके प्री प्री बोर्ड, सब कुछ वो आपके स्टेट बोर्ड से आएगा। ठीक है, जब आप सीबीएसई पेपर देने जाते हो वो आपके सेंट्रल बोर्ड, ऑल इंडिया बोर्ड होता है वो। क्योंकि Delhi, हाँ अगर when you study in Delhi board, how will you write the CBSE exam? यार, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। बेसिकली क्या है, सीबीएसई बोर्ड है आपका। हाँ हाँ। ठीक है, तो सीबीएसई के अंदर जो स्कूल्स आते हैं ना, तो हम्म। सीबीएसई हर एक को तो पेपर नहीं दे सकता ना, हर 2 महीने में मिड टर्म के। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो क्या कर सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने कहा है जो मिड टर्म, आपके जो मिड टर्म होते हैं, जो आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, वो आप खुद कंडक्ट कराओ हर एक बोर्ड को। ठीक है। हाँ, मेरे को समझ आ रही है, लेकिन हाँ। जो जब आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, हम्म। सो देयर इज अ सेपरेट स्टेट बोर्ड। हाँ। सो जब आप बोर्ड एग्जाम लिखने जाते हैं, वो हम्म। तमिलनाडु का बोर्ड एग्जाम देते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम नहीं देते हैं, तो आई एम आस्किंग सीबीएसई लाइक दैट। बोर्ड, नो 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 नो, जो आपका फाइनल पेपर होता है ना वो सीबीएसई से आता है बच्चे। दैट पेपर इज फ्रॉम सीबीएसई ओनली। स्टेट फाइनल बोर्ड पेपर इज, एग्जाम। नो नो नो, स्टेट बोर्ड इज नॉट इन्वॉल्व। नो ओ। नो। या, final paper is from CBSE board, is all India, papers will be same for all the students only। जो 4 सेट बनेंगे, जो 4 सेट बनेंगे वो पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए बनेंगे। डजंट मैटर। हाँ, वो डजेंट मैटर दैट फ्रॉम विच स्टेट यू आर, इट डजेंट मैटर। ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड। हाँ, ये 4 स्टेट आपके सेम ही, 4 सेट आपके सेम होंगे। ठीक है, जो आपके दिल्ली लिखा होता है ना, देखो इस वाले क्वेश्चन में लिखा था ना दिल्ली। दिल्ली का जी। मतलब है ये किसी प्री बोर्ड का या मिड टर्म का पेपर का क्वेश्चन होगा। समझे आप? क्योंकि दिल्ली का हाँ। वर्ड मतलब समझ रहे हो, क्योंकि हर एक बोर्ड का, जब बोर्ड अपना पेपर बनाता है मिड टर्म या प्री बोर्ड्स का, तो उसमें अलग अलग चीजें होती है, उसमें क्वेश्चंस डिफर करते हैं ऑब्वियसली। बट आपका जो प्री बोर्ड, वो जो फाइनल पेपर आता है वो सेम होता है सबका। ठीक है। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये चीज है। ये क्वेश्चन बताओ आप फारिस, विच टू कनेक्ट पैरल सर्किट्स आर इन सीरीज एंड विच टू आर इन पैरेलल, इफ एवरी रेजिस्टर इज ऑफ टू सर्किट, व्हाट विल बी द, what current will flow in the circuit? We need to calculate the total amount of current. R4 and R5 is in series. R4 and R5 is in series, अच्छा ठीक है, what about rest? And if you consider R1, R2, R3, R4, R5, they all are in parallel. R3, R2 and R3 is in parallel. R2 and R3 is in parallel, okay। थोड़ा सा और एनालाइज करो, कोशिश करो। Check try second. to try to analyze more। देखो, क्योंकि आंसर इतने जल्दी, थोड़ा सा एनालाइज करो और। You can say like this, yeah. R1 plus R2 plus R3 is in parallel with R4 plus R5, like that. R1 R2 are in parallel, R1 R2 and R3 is in parallel, you are saying this? Yeah. Okay, and after that what you have said? But R4 and R5 is in series. R4 and R5 is Is in in series. series, हो गया, but is in series with the combination of this circuit। तो आपका Yeah. जो टोटल, जो आपका जो बेसिकली ये क्या, देखो मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली ये तीन जो रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल है। हाँ हाँ। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे पैरेलल है, देखो ये जॉइंट देखो, इसका जॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, बेसिकली एक वायर ही, मान लो आपने एक वायर को एक्सटेंड करके यहाँ जोड़ दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम, इसका एंड पॉइंट यहाँ पे आके जॉइंट हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ हाँ पे हाँ। देखो ये दोनों चीजें, तो R1 R2 3, तो ये तो आपके पैरेलल हो गए। तो आप इसको जरा सॉल्व करो, R1 R2 R3 को अब। तो आपका डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हम लोग।
which two resistors are connected in series and which two resistors are connected in parallel? तो two resistor connected in parallel R3 और R2 हैं, ठीक है। हम्म ठीक है, सो जरा उसको सॉल्व किया जाए। लेट्स सॉल्व। सो आपका जो R, सॉरी 1/R123 इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R3। तो अब तीनों सेम है ये, तो कैन आई राइट 3/R? ये अब मुझे बताओ, ये समझ में आया नहीं आया आपको? अगर तीनों रेजिस्टर्स से सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है तो कैन आई राइट 3/R? मतलब समझ लो जैसे कि मैं R1 R2 और R3 को सपोज रिप्लेस कर रहा हूँ yeah, 1/R से। जस्ट अ सेकंड, लेट मी राइट इट अगेन। थोड़ा सा मैं और दोबारा से लिख दूँ ताकि आपको समझ में आए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, 1/R123 इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R3 इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। अब कैन आई राइट दीज 1 by डायरेक्टली एज 3/R? Because the denominator is same, so you can directly add the numerator because LCM will be R. yeah, Okay, so your R1 2 3 will be equals to R3. Yes or no? So this complete circuit will be replaced by R3. ठीक है, got it? And okay, R5 R1 2 3 and R4 are parallel. Clear है? clear. Sorry, R series R in series. Clear है? हम्म अच्छा, Sure? समझ में आया? समझ गया। हाँ, तो आपका जो और जो सीरीज में आएगा आर इक्विवेलेंट जिसको हम कह सकते हैं वो है आपका R1 2 3 प्लस R4 प्लस R5। तो आप R/3 लिखोगे इसे तो भाई ये भी आर ही होगा, ये भी आर ही होगा, बिकॉज ऑल द वैल्यूज ऑफ बेसिकली सेम है ना, 2 ओम। हम्म एलसीएम लो आप इसका 3। तो मैंने वैल्यू पुट नहीं करी है बट क्वेश्चन ने कह दिया ना ईच ऑफ द रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम, यानी कि वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर्स की सेम So, है। no, I don't understand one thing. हाँ, When you're calculating in parallel, right? Why didn't you put the value of R as 2 ohm? I have not put the value of 2 ohm right, like yet, Why? because it's like देखो आप कर यू कैन पुट द वैल्यू बट इजी है ना, हम लोग बस नॉर्मली सॉल्व करके एंड में आके जब हमारा आर इक्वलेंट आ गया, देखो ये कितना है, सेवन अच्छा आर बाय थ्री है। आप पुट कर दो हम्म, वैल्यू 7 into 2/3 which is 14/3, सिंपल। ओम, अच्छा। क्लियर है? उस वक्त आप R का वैल्यू रिप्लेस कर हाँ, सकते यस यस यस। हैं। 2/R होगा ना, सॉरी सॉरी, 2/R होगा ये। क्यों, देखो मैं बताता हूँ अभी आपको, मैंने ध्यान नहीं दिया। शॉर्टेड है ये बेसिकली, वायर देख रहे हो आप, R1 जो है ना शॉर्टेड है। R1 हम्म का ये पॉइंट आया यहाँ से और ये पॉइंट आया यहाँ से। R1 कहीं भी किसी से भी ऐसे कनेक्टेड नहीं जो करंट फ्लो करे, R1 का लूप ऐसे ही घूमता रहेगा। तो ये शॉर्टेड कहलाता है। whenever हम्म, वायर इज कनेक्टेड विद itself तो वो शॉर्टेड हो जाता है। तो 2/R, सो आर इक्विवेलेंट बचा आपका R/2। ये आपका R/2 हो गया, ये आपका R/2 हो गया, ठीक है। आपका हो जाएगा 2, आपको हो जाएगा R प्लस 2R एंड प्लस के 2R। सो आपका आ गया 5R/2। पुट कर दो वैल्यू 5 into 2/2, दिस विल कैंसिल, सो 5 ohm इज योर
रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? क्लियर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, 5 वोल्ट गिवन है। करंट निकाल दो भाई। टोटल करंट कितना आएगा? V बाय आर हम्म इक्वलेंट। ठीक है। 5/5, सो कितना करंट है आपका? टोटल 1 एम्पेयर का करंट है। दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर फारिस? प्लीज लेट मी नो। क्लियर? यस। क्लियर है? क्लियर। चलो ठीक है। देखो देखो, मैंने एक क्वेश्चन आपको क्लास में भी कराया था। देखो ये CBSE क्या, आपका फॉरेन का 2009 का क्वेश्चन है। हम्म देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम लाइक, सेम का तो याद नहीं है बट हाँ सिमिलर क्वेश्चन है। देखो ये बी पार्ट, देखो इसका बी पार्ट कराया मैंने। इस टाइप का क्वेश्चन दो पैरेलल है, एक सीरीज है, याद है? देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, देखो सिमिलर क्वेश्चन है नहीं है? हाँ है। तो इसलिए ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो आप, सेकंड पार्ट इसका। सिर्फ सेकंड पार्ट। हाँ सेकंड पार्ट सिर्फ। रेजिस्टेंस। I have a small doubt. हम्म For the second part of this question, right? Um, हम्म सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है हाँ हर यस। रेसिस्टर में। तो और तो इसके लिए वोल्टेज अलग अलग से निकालना पड़ेगा। हाँ, for every resistor you have to calculate the diff, because voltage different होता है तो obvious सी बात है कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको using Ohm's law। हम्म पैरेलल में जैसे हम कैलकुलेट करते हैं करंट इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी रेजिस्टर, सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम्म ना। सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट।
Again, we don't know the value of I, so how will you find out V? You know the value of the equal, you have to calculate the equivalent resistance, then you have to calculate the total current. Then you will be able to find the value of the resistance through, or like the value of current voltage through 7 ohm. No, to find the current, you need the voltage, right? To find the current there, you need the total, you need to find the voltage, you need the total current. And total, you to get the total current, you need the total resistance. First, calculate the equivalent resistance of the circuit. Okay, okay, I understand. Yeah, I'm done. Done all the values. Yeah. Okay. So let's find out whether you have done it right or wrong. Because these two, so suppose this is R1, this is R2, and this is R3. So you can see this thing, R2 and R3 are in parallel. Mm. So R2 and R3 are in parallel. Okay. So how you will So, calculate? Just a second. yes. 1 by R2 3 is equals to 1 by R2 plus 1 by R3. Okay. So 1 by R2 3 will be equals to 1 by 5 plus 1 by 10. Take the LCM of this, 10 will be the LCM. So 10 divided by 5 will be 2 plus 10 will be 10. So it would be 3 by 10. So R23, what will the value of R23 will be? On your 10 by 3 ohm. Okay. And this, it means that this circuit will be replaced by 10 by 3 ohm resistor. So 10 by 3 and R1 will be in series. yeah. Yeah, R1 and R2, 3 are in series. Okay. So your R equivalent will be equals to R1 plus K R2 3. So R1 is 7 plus 10 by 3. So 3 sevens are 21 plus 10 by 3.
just take the LCM. Clear? So this is what 31 by 3 ohm. This is your whole the equivalent resistance. Now this first part is done. This is the first part. To calculate the total current, I will be equals to V by R equivalent. Yes or no, Faris? We need the total current. Value of voltage is 6 volt, total voltage. Value of equivalent resistance is 31 by 3. So 6 by 31 into 3. क्लियर है? बिकॉज डबल डिविजन हो गया ना, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. इज इक्वल्स टू 6 3 जी 18 बाय 31 एम्पेयर. ठीक है, दिस इज योर टोटल करंट. सो यू हैव टू कैलकुलेट द थर्ड पार्ट, द वोल्टेज थ्रू. So V1 will be equals to IR1 because current is same in the series circuit. Yeah. So I is 31 by 3. IR1 is 7. ठीक है, 7 ही है ना? नहीं सॉरी, Yeah. मैंने गलत ले लिया. सॉरी मैंने वैल्यू ले ली इसकी. 18 by 31 हो जाएगा ना. 18 by 31. सो कितना हो गया? 90 और 90 36. 126 by 31 volt. ठीक है? Is this your answer? Yeah, that's my answer. Yeah, that's correct है. But I divided it. Okay, no issue. So आप ऐसे भी छोड़ सकते हो अगर आप मतलब like you have, if you want to go with the, you can say proper calculation, तो आप वो भी कर सकते हो. बट थोड़ा सा ये होता है समटाइम्स, क्या होता है कि एग्जाम टाइम के प्रेशर में जो ना कैलकुलेशन डेसिमल्स तक ले जाने में जो ना बहुत ज़्यादा एरर आने के चांसेस होते हैं. लाइक जब आप नॉर्मल फ्री माइंडेडली यूज़ कर रहे होते हैं अपना माइंड, लाइक कोई प्रेशर नहीं होता, तो कैलकुलेशन ठीक जाती हैं. बट जब आप एक प्रेशराइज एनवायरनमेंट में होते हैं, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता उसको रीचेक करने के लिए. सो इसलिए समटाइम्स अगर वो कैंसिल हो रहा है, इट्स एडवाइजेबल आप कैंसिल कर दो उसको और मिनिमल फॉर्म में लिया और सिंप्लीफाइड फॉर्म में. अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको वहां भी रहने दे सकते हो. ठीक है? Let's say in this 126 by 31, हाँ. no, एक second में check कर. I got 5.6 volt actually. 5.6 वोल्ट. सो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? 4. 31 126 बाय 31, सो अराउंड 4 आ रहा है. आई डोंट थिंक सो. कोई हमने गलती तो नहीं की है 5 और 10 में? 10. फर्स्ट 10. क्वेश्चन आ 10 by 3 और मैं उसको कन्वर्ट कर लिया था. हाँ, तो 10 by 3 आपका 3.33 हो गया ना. हाँ 3.33. उसके और बाद तो आपका और 7 से ऐड कर दोगे तो 10.3 हो जाएगा. सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या हुआ आपको? सेकंड वाला क्वेश्चन तो वी आर इक्विवेलेंट तो हमने सही पुट किया है ना, क्योंकि R23 ओके ओके. और 18 by 31 चेक करता. रुक जाओ. 37 से 21 है ना, ये तो ठीक है, हमने कोई इसमें मिस्टेक भी नहीं है. 31 by 3 ठीक है. 31 by 3 हमने नीचे लिया, 3 ऊपर किया, 6 3 से 18 by 31. मिस्टेक. 18 by 31 कितना आ जाएगा आपका? नो आई मेड पॉइंट. द मिस्टेक. अच्छा. हाँ, तो आपका 0.58 आ जाएगा. हाँ मैंने 0.8. ये 0.58 एम्पेयर है. हाँ. और ये आपका इक्वल है 4.06 वोल्ट. सो अप्रोक्सीमेटली 4 वोल्ट है आपका. ठीक है? Okay, I did it. आई होप इट्स क्लियर. Yes. पक्का? This will come for बढ़िया. 3 marks. दिस विल, Will it come for 3 marks? हाँ, Okay. 1 मार्क्स फॉर ईच. Okay, ओके. understand. अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन पढ़ो फारिस. पर वाला सेकंड question. पार्ट, ए का सेकंड पार्ट. 2 resistors R1. अच्छा, second part. हम्म. Parallel combination and the combination will be connected to
6 volts. Okay, a series combination or a parallel combination. हम्म तो उसमें But रेजिस्टेंस वो करंट केस में सेम रहेगा, पोटेंशियल केस में। क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया. And the combination. हाँ देखो, A parallel combination R1 R2 and दो the रेजिस्टेंस है, या तो आप उसको सीरीज में लगा सकते हो या पैरेलल में लगा सकते हो। तो अब हमें ये बताना okay, है okay, कि okay. हमने अच्छा. कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया एक बैटरी से 6 वोल्ट की, तो किस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस R1 एंड R2 के अक्रॉस सेम होगा, और आर वन एंड आर किस कॉम्बिनेशन में R1 एंड R2 के अक्रॉस करंट सेम होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और सीरीज में करंट सेम रहेगा. वेरी गुड, ठीक है। सो ये हम्म. क्वेश्चन था सिंपल सा। आई होप इट्स क्लियर। जी. चलो, so let's do some more question based on the heating effects of current. अच्छा, why does the connecting cord of an electrical wire electrical heater not like जो बेसिकली जो कॉर्ड होती है आपकी वायर होती है फारिस। हाँ, हाँ. हाँ, जो वायर होती है आपकी, जैसे कि हमने जैसे चार्जर होता है हमारा मोबाइल का, तो इसमें जो कॉर्ड होती है ये, तो ऐसी इलेक्ट्रिक हीटर की जो कॉर्ड होती है वो वो रेड क्यों नहीं होती, बट जबकि हमारा जो हीटर का एलिमेंट होता है वो रेड हो जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे? Can you repeat the question, sir? ओके, आई एम बेसिकली पेस्टिंग द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ये क्वेश्चन है आपका। हम्म, This from electricity chapter. yes sir, फारिस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Okay. I'm not sure, but I can. I think ट्राई टू आंसर। it's maybe because the electric heater is connected in parallel and the heating element is connected in series. नो 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 नो, Blue, red hot. think a little bit resistance and resistivity is involved. Let me think. Maybe the resistivity of the what do you say resistivity of the cord is low, Okay, what about the heating element? and the resistivity of the heating element is high. थोड़ा सा और रिफाइन करो, सोचो थोड़ा सा। Basically, you can say that the heat produced is directly proportional to the resistance. Uh, because the cord has low resistance, the heat. Uh, थोड़ा सा बेटर हुआ आंसर। हाँ, तो बेसिकली सेम फंडा है जो आप कह रहे हो, दैट्स करेक्ट। तो व्हाट हैपन इज दैट जो हमारी कॉर्ड होती है ना इलेक्ट्रिक हीटर की, उसमें रेजिस्टेंस इज वेरी लो, क्योंकि अगर हमने कॉर्ड का रेजिस्टेंस वेरी हाई कर दिया, रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, तो हमारी कॉर्ड की जो प्लास्टिक कोटिंग है वो मेल्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ हीट। फारिस, ज्वाइन करो जरा रूम 1। अच्छा, ठीक है.